ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ دعا کیا ہے؟ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، یہ کیا دعا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مسنون دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہاں، اگر اس دعا کی طاقت اور کمال سننا ہے، ٹیک چھوڑیں پہلے۔ یاد رکھیے گا، علم ادب مانگتا ہے، اور جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے، علم ادب مانگتا ہے، اور یہ وہ علم نہیں ہے، یہ عرشی اور وحی کا علم ہے، یہ وحی کا علم ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے۔ اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، اور ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کر دے، ساری ضرورتوں کی کفایت کر دے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں، روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں۔ اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے۔ اور جب سے یہ دعا پڑھی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے ہیں۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا، جو کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، اس نے لے لی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ ہاں، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطاہر مانگتا ہوں، حرام کا حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے،
हाँ, और एक और सहाबी का कौल है, और यही कौल हजरत इमाम जाफर सादिक का है कि हराम का अंजाम फक्र और किल्लत है। अल्लाह मुझे हराम नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह कहता है अच्छा चलो ठीक है, तेरी किफायत कर दी। तो फिर अल्लाह से एक बात और भी मांगते हैं, आगे जरा सुने। वह अगननी बेफजल का, मौला मुझे गनी कर दे, मुझे पता है तेरे फजल से कोई गनी होगा, मेहनत करके गनी कोई नहीं होगा। क्या कमाल दुआ है। वह अगननी बेफजल का, अगननी, मुझे तेरे फजल से गनी होना है। मैं जा रहा था, सीढ़ी रखी हुई थी लंबी बड़ी ऊंची, और सर पे गारे का थाल था और एक बंदा चढ़ रहा था। मैंने देखा है मेरा क्लास फेलो है। वो उस वक्त तक कदम इतने चढ़ चुका था कि छत पे गारा देने गया। आगे एक और मजदूर खड़ा था, उसने छत की लिपाई हो रही थी, छत की लिपाई हो रही थी भूसे वाले गारे से। मुझे देख रहे हैं, मैं नजर आ रहा हूं, ये देखें जरा, उंगली नजर आ रही है मेरी, बस फिर ठीक है, क्योंकि आंखें बंद होंगी तो नजर कुछ नहीं आएगा। अब तो बाबा मेरा साथ देता है, हाँ जागता है माशाल्लाह। अब इसे थोड़ा सा यूं करके बैठा हुआ है, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जब वो नीचे उतरा तो मैंने उसको आवाज दी, उसने पहचान लिया। मैंने उसके वालिद को मजदूरी करते देखा था और उसको सुना था कि उसका दादा भी मजदूरी कर रहा और वो आज भी मजदूरी कर रहा। वह अगननी, अल्लाह मुझे गनी कर दे, बेफजल का, होगा तेरे फजल से। मेहनत शर्त है, ये लफ्ज हमेशा याद भी रखें, गौर भी सुने। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि मेहनत, फैसले जो हैं वो मेहनत पे हो जाए, ना ना। हाँ, मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। कितने सारी उम्र मेहनत करते 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 करते, सारी उम्र मेहनत करते बंदे खत्म हो गए। वह अगननी बेफजल का अमन सिवा, और मौला एक शफकत यह करना, मुझे किसी का मोहताज न करना। अमन सिवा, किसी के दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना, अल्लाह किसी का सवाली ना बनाना, अल्लाह मुझे आजिज ना बनाना। वह अगननी बेफजल का अमन सिवा, इतनी ताकतवर दुआ है। और दुआ के अंदर की ताकत को परखें, अंदर के मफहूम को देखें, अंदर के तर्जमे को देखें। ये कल मैंने इज्तिमाई बैठ के पढ़वाई थी, आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसकी तादाद को ना देखें। अल्लाह की यहां क़यामत के दिन सुनना गौर से, अदद नहीं तोले जाएंगे, अदद के अंदर खुलूस और इखलास तोला जाएगा। इसने उसकी इसके इस अदद के अंदर इसका इखलास कितना है, इसकी तलब कितनी है, इसकी लिलाहियत कितनी है, इसकी तड़प कितनी है, और इसका जज्बा कितना है, अल्लाह के यहां यह तोला जाएगा। और फिर अगली बात, वो अमल जिस मुजाहिदे से किया जाएगा, जिस कुर्बानी से किया जाएगा, जैसे आप चौकन्ना होके जाग के तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, इस मुजाहिदे से एक नूर मिलता है, वो नूर तोला जाएगा। इस मुजाहिदे से नूर मिलता है, इस मुजाहिदे से। हाँ, घरों को छोड़ा, आप आखिरी अशरे के एतकाफ में आप फिर उस वक्त जाएंगे जब एतकाफ खत्म हो जाएगा। ये जो कुर्बानी है अल्लाह के लिए की है, इस मुजाहिदे पे जो मुजाहिदा आया, इस कुर्बानी पे जो कुर्बानी आई, कभी जागने की, कभी टेक हटाने की, कभी तवज्जो करने की, कभी अपनी चाहतों को तोड़ने की, इस पे नूर मिलता है। ये नूर क़यामत के दिन तराजू में तोला जाएगा। वह अगननी बेफजल का अमन सिवा, मौला मुझे गनी कर दे, और मुझे पता है गनी तेरे फजल के बगैर कोई नहीं होगा। अल्लामा इकबाल टाउन, यहाँ लाहौर में इकबाल टाउन है, बहुत पुरानी बात है। एक साहब थे, कहने लगे यहाँ अपने दोस्त से मिलने जाता है। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा इनसे ताल्लुक था।
अपने दोस्त के यहां गए, सारे घर वाले बहुत बहुत मोटे थे, उनके घर के सोफे कुर्सियां हर चीज बड़ी बड़ी बनी हुई थी, और सोफे कुर्सियों के इन हिस्सों पे जहां बाजू रखते हैं सोने के पत्रे लगे हुए थे, सोना लगा हुआ था सारा, सोने का पेंट नहीं था, सोने की शीटें थी, पत्रे थे, सारा सोना लगा हुआ था। कहने लगा ये थाली उठा के ऐसे एक आने के 4 एक आने के 6 बिस्किट बेचता था। बहुत मेहनत की मैंने, और फिर ऐसे आंसू निकल आए और कहा मेहनत शर्त नहीं है, उसका करम शर्त है, उसका फजल शर्त है। इस दुआ में उसका करम है, इस दुआ में उसका फजल है, इस दुआ में उसकी इनायत है, इस दुआ में उसकी अता है। अल्लाह पाक ना बाज़ औक़ात बंदे के लिए देर करता है, और अल्लाह जानबूझ के देर करता है। उसके साथ उसकी कुछ अदाएं होती हैं, बंदे को समझ नहीं आती कि मेरे साथ देर हो रही है। उसके मसले हल हुए, मेरे नहीं हुए। वही दुआएं वो पढ़ता है, वही दुआएं मैं पढ़ता हूं। तवज्जो है तवज्जो? वही दुआएं वो पढ़ता है, वही मैं पढ़ता हूं। उसका काम बन गया, मेरा नहीं बना। उसे इल्म नहीं है कि इस तेरा अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक है, और तेरा अल्लाह के साथ कितना तारुफ है, और अल्लाह तुझे किस हाल में देख के बैठ के खुश होता है कि मेरा बंदा देखो, मैंने अपनी अमर अपने हुक्म से इसके मसाइल न हल होने के लिए फरिश्तों को कह दिया है, पर मेरा दर नहीं छोड़ता, मेरा घर नहीं छोड़ता। अल्लाह इस अदा पे खुश होते हैं। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका, अल्लाहुम्मा अक्फिनी, पढ़ने में है अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ऐसे रिज़्क़ का जो मेरी किफायत कर दे, और है इतना ज्यादा हो कि मेरी किफायत कर दे, मेरी नस्लों की किफायत कर दे। पर मौला मुझे हलाल चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी नस्लों में हलाल बढ़ेगा, फलेगा, पनपेगा। हलाल और हलाल की जिंदगी आगे से आगे बढ़ेगी, और जिन बोटियों और जिन जिस्म में हलाल जाता है वहां जिंदगी का निजाम। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे कि उनको तकलीफ हुई तो किसी ने खून की बोतलें दी। निश्तर की बात बता रहा हूं, मुल्तान की। खून की बोतल दी ना, खून लग गया, सेहतयाब हो गए। खून लगने के बाद कहने लगे मेरी कैफियतें तब्दील हो गई हैं, मेरी कैफियतें तब्दील हो गई हैं। लगता यह है कि मुझे वो खून लगा है जो हराम रिस्क से पला था, मजबूरन था, खून लगाना था। मुझे एक लफ्ज ये सुने और कहा, ये डॉक्टर नूर अमन नूर साहब से मैंने खुद सुने, कहा कि एक मुझे खून वो लगा है जो हराम रिस्क से पला था, एक खून वो लगा है जिसमें गैरत नहीं थी। बारीक बातें हैं। वो कहता है तो भाई बात करता है उधर जान जाती है। हाँ, खून लगाना, जान को बचाना सबसे अव्वल है, मैं उसके बाद की बातें कर रहा हूं। खून में एक क्या था, हलाल नहीं था, और दूसरा खून में गैरत नहीं थी। कहा कि मेरी अंदर की तब्दीली शुरू हो गई है, मेरे अंदर के हालात खराब हो गए हैं, मुझे बचा लो। मेरे अंदर की जुबान बदल गई, मेरे वज़ाइफ, मेरी तस्बीह, मेरी कैफियतें, पता नहीं क्या कुछ बदल गए। खून का एक कतरा असर रखता है, जहां खून इतना ज्यादा जिस्म में जाए। और खून बनता किससे है? उसी रिस्क से तो बनता है जो बंदा खाता है। और खून बनता कहां है? वो जिंदगी का निजाम है जिससे खून बनता है। फिर खून के अंदर अजीब बात है, नस्लों के असरात होते हैं। कह रहे खून के अंदर असरात हैं। कहते हैं इन्हां दी रत च भुख है, इनके खून में भूख है। और नस्लों के असरात खून में मुंतकिल होते हैं। वो खून जब जिस्म के अंदर आता है, जिंदगियां बदल जाती हैं। फिर यहां अपने आप को बंदा किसी के हवाले करे। फिर उन्होंने इतने बड़े बुजुर्ग होके कहा, एक बुजुर्ग के हवाले किया, जैसे डायलिसिस की मशीन लगती है और उससे जिस्म का सारा खून साफ होता है।
डायलिसिस की जो मशीन है ना, वो जिस्म के अंदर के खून के से क्रिएटिनिन, यूरिया, ये फलां फलां चीजें ये साफ करके निकाल देती है और खून बेहतरीन हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। इसी तरह फिर उन्होंने एक अपने आप को दरवेश के हवाले किया। कई माह के बाद कहने लगे अब मुझे कुछ एहसास हुआ है कि मुझे कुछ सुकून का सांस मिला है और मैं उसकी कड़वाहट और उसके जहरीलेपन से कुछ निकला हूं, लेकिन मजीद मेहनत की जरूरत है। खून के अंदर वो चीज चली गई और खून उसके अंदर मुंतकिल हो गया। एक साहब कहने लगे कि एक सखी था, तो वो बेचारा जो है वो मरीज बन गया, उसको खून की जरूरत पड़ी। एक बखील ने उसको खून दे दिया, खून दे दिया। वो पहले सखावत करता था, बहुत सखावत करता था। उसके बाद उसने कहा कि अब मैंने अपना खून दिया, अब तो सखावत ज्यादा करेगा। जब उसका खून लगा तो उसको तवक्को थी लाख रुपए की, उसने दिया रुपया। ये क्या? उन्होंने कहा तेरा खून का असर है, तेरे खून का असर। बाज़ जगह ऐसी होती है कि इंसान जुबान बंद कर लेता है, खामोश हो जाता है। बस आप जिंदगी के दिन रात खामोशी से गुजारो, पर खून का असर जिंदगी में मुंतकिल हो जाता है। फिर हया और गैरत और पता नहीं कितनी चीजें, और जिंदगी में हलाल हराम। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका। मौला मैं तुझसे किफायत मांगता हूं, बस इतनी हो मैं किसी का मोहताज न रहूं, और मुझे गनी कर दे और अमन सिवा कर दे, किसी का मोहताज ना करना। मैं दर दर का भिखारी साइल मंगता ना बनूं। बहुत ताकतवर दुआ है, बहुत ताकतवर दुआ है। कई सहाबा से, उसमें हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम भी इसके रावी हैं। कई ताकतवर दुआ है, बहुत जबरदस्त दुआ है। खुशकिस्मत होगा जो इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल कर ले। सुबह शाम 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ लिया करें। क्यों? ये दुआ उन बुरे हालात से बचाएगी जब पल में बंदा ऐसे खाली हो जाएगा। मुझे एक बहुत बड़े ताजर ने बात बताई। रात को मिलों के मालिक थे, सुबह हम फकीर थे। एक दौर आया था कि हुकूमत ने सारी मिलें और फैक्ट्रियां अपने पास ले ली थी। ये 1970 के बाद और 78 के दरमियान में यह दौर था। नेशनलाइज लफ्ज इस्तेमाल, यही सारी चीजें नेशनलाइज कर रही थी हुकूमत ने। मिलें सारी खाली हो गई, मालिक खत्म हो गए। उन्हें कहा आज के बाद तुम मालिक नहीं हो, हम मालिक हैं। कईयों को हार्ट अटैक हो गया, कहीं बैठे बैठे वहीं मर गए, कई खत्म हो गए। और सुबह खाली थे, वो बिल्कुल खाली थे। वो दुआ जो मुझे संभालती रहे। आज बहुत माल, बहुत पैसा, बहुत दौलत है, अगर मैंने दुआओं की ताकत से अपने माल, दौलत, रिस्क को ना संभाला, एक ऐसा झटका लगता है कि इंसान खाली होकर खड़ा होता है। ये दुआएं मसनून दुआएं, जिनकी ताकत, जिनकी तासीर, जिनका कमाल हमारी नस्लों तक चलेगा। अगर याद नहीं है, अल्लाह ने तस्बीह खाने का क़याम दिया है। आज सारा दिन फिक्रमंद होके इसकी जेर जबर समेत इसको याद कर लें। नहीं है तो पीछे पड़ जाएं, याद नहीं है तो इसको याद कर लें, अज़बर कर लें, जुबान पे इसको रवां कर लें। ये जिंदगी में साथ बनेगी। आप जितने अनपढ़ हों कोई हर्ज नहीं। मैंने अनपढ़ से अनपढ़ वो अरबी बोलते सुनी है, अनपढ़ से अनपढ़ को वो इंग्लिश बोलते सुनी है। क्यों? माल और दौलत के लिए अरबी भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, रशियन जुबान भी आ जाती है, और दुनिया की मुश्किल तरीन जुबानें आ जाती हैं। अनपढ़ से अनपढ़ सब कुछ सीख लेता है। ये दुआ जिंदगी में जरूरत है। इस दुआ को अपना साथी बनाएं, इस दुआ को अपनी जिंदगी का हम सफर बनाएं।
जब इस दुआ की तासीर में जाएंगे ना, इसके माने में जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा मैं पढ़ क्या रहा हूं। सिर्फ लफ्ज अल्लाहुम्मा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। अल्लाहुम्मा, अल्लाह, ये जो लफ्ज अल्लाहुम्मा है ना, इसमें अल्लाह की सारी हमद, सारी तारीफ, सारा अल्लाह का कमाल और सारा जमाल इसी एक लफ्ज में आ जाता है। उसने कहा जी खुतबा मसनूना पढ़ें, निकाह करवाते हैं, उन्हें कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें कहा भाई तो खुतबा मसनूना हो गया। हाँ भाई इतने हजार में इतने तेरी निकाह दिया, कबूल किया तूने, अल्हम्दुलिल्लाह अकेला खुतबा है, खुद पूरा खुतबा है। हाँ, अल्लाहुम्मा अकेला अल्लाह की सारी हमद है, सारी तारीफ है, सारी इज्जत है, सारी अजमत है और सारा कमाल है। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। तो इसको याद करेंगे। हमारे उस्ताद जी तो दीवार के साथ खड़े करके सुनते थे। दीवार के साथ खड़े करके ऐसे हिलते थे, सुनाते थे। हिलते पता नहीं क्यों थे, अब ये समझ नहीं आती। ये अब समझ नहीं आती थे हिलते क्यों थे, पता नहीं। एक साहब थे, वो बहुत बड़ा कुत्ता था उनका, सुबह कुत्ते को लेके फिर आते थे, बकरियां भी रखी हुई थी, बच्चे भी पढ़ाते थे, ट्रंकों की दुकान थी, टीन के ट्रंक नहीं होते, संदूक के ट्रंक, इसकी दुकान थी। तो एक बच्ची जो है उससे पूछने लगे तो कल क्यों नहीं आई थी। अब भी मुझे याद है वो 7-8 साल की बच्ची थी और उसका सांस रुक रहा था, ऐसे करती थी, बुढ़ी होगी बेचारी। तो फिर सुनाओ, फिर कैसे सुनूंगा, पहले ऐसे करके सुनाओगे या कैसे सुनाओगे, पहले बता दो। अल्लाह को सुनाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को सुनाएंगे, अल्लाह को सुनाएंगे और इसको याद करेंगे, और याद करने के बाद इसका भरपूर यकीन अपने मन, तन और अपने जज्बों में लाएंगे। हाँ, इसका भरपूर यकीन, अल्लाह उसके हबीब का वादा है, इस दुआ के साथ अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, सच्चों का सच्चा, वही लाने वाला जिब्रील सच्चा, इस दुआ को लाने वाले आले रसूल, असहाबे रसूल सच्चे, मुहद्दिसीन फुकहा ने ये दुआ 14 सदियों तक हम तक पहुंचाई, वो भी सच्चे थे, सच्चों की जुबानों से सच्ची चीज आई है, आज भी ये सच्ची है और इसकी तासीर भी सच्ची है, इसका फायदा भी सच्चा है कि ये बारिश करा देती है और इंशाअल्लाह कभी मोहताज नहीं कराती। दुनिया की हालात करवट बदलते रहते हैं, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, ये अल्लाह पाक की रहमत इस दुआ के साथ है। हाँ जी, फिर इस दुआ को याद करेंगे बहुत तवज्जो से, इस दुआ को याद करें। अचानक मेरे दिल में एक बात आई है, ये हमारे शेड्यूल में शामिल नहीं है। वो कहते जी गाड़ी का स्टॉप तो नहीं था, अचानक गाड़ी खड़ी होगी। स्टॉप तो नहीं था, अचानक मेरे दिल में एक अचानक बात आई है। हालांकि ये हमारा अमल 26 मुहर्रम का है, लक़द जाकुम रसूलन का जो नक्श है, मैं कहता हूं जुमतुल वदा में ये अमल आपको कराऊं। अचानक अल्लाह ने दिल में डाला, फिर ये मैंने इनका जो है ये 10 मुहर्रम को, ये देखे ना वही है, वही नक्श है, ये क्या है 10 मुहर्रम, क्या रखा आप इसमें, लक़द जाकुम नक्श है, ये देखो क्या है, देखें जरा। तो ये कागज है छपा हुआ उसी नक्श का, उसका तरीकाकार हमारे पास एक था, वो नहीं है, वो है हमारे पास छपा हुआ एक कागज है जिसमें तरीका, ये तो नहीं है, ये तो और है। मेरे जी में एक बात है, शबे जुमा में, शबे जुमा में मैं चाहता हूं आप नक्श लिखें, शबे जुमा में
शब जुमा में नक्श लिखें और उनमें से कुछ नक्श तस्बीखाने जमा कराएं, कुछ नक्श साथ ले जाएं। जो तस्बीखाने जमा कराएंगे वो अपने साथ में रख कर उन पे अमल करूंगा और उनको दरख्तों पे बदवाऊंगा इंशाअल्लाह। नक्श लिखें, कुछ तस्बीखाने जमा कराएं, उनमें आधे जमा कराएं, थोड़े जमा कराएं, जितने भी हैं, और जितने चाहे लिखें। लेकिन इसकी असल है सिर्फ 3 लिखने हैं। कितने लिखने? एक तस्बीखाने जमा करें, 2 साथ ले जाएं। उनमें से एक क्या करेंगे? एक दरख्त पे लटकाएंगे, एक अपने घर में कहीं मकाम पे रखें या लेमिनेशन कराएं। या लक़द जाकुम का नक्श हर साल 26 मुहर्रम को लोग इंतजार करते हैं। और रोजे के साथ जो लिखा हुआ नक्श होगा, रोजे के साथ मुराद रमजान हो, आखिरी जुमातुल वदा है, और इस शब जुमा में ये नक्श लिखें। शब जुमा भी लिख सकते हैं, जुमे वाले दिन भी लिख सकते हैं, बस है साथ हैं यही, शब जुमा भी और ये लिख लें। आइंदा साल भी इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो मैं ये चाहता हूं कि इस नक्श को साल में 2 दफा ले आऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका आमिल हूं। अल्लाह की तौफीक से मैं अपनी इजाजत से, अपनी निगरानी में, अपनी तवज्जो में करवाऊंगा। और ये नक्श 3 नक्श लिखने हैं सिर्फ। एक नक्श तस्बीखाने दे दें, 2 साथ ले जाएं। एक को कहीं दरख्त पे लेमिनेशन, इसको टेप वगैरह करके अपनी मुराद उस पे लिख के, और एक जो है घर के अंदर रखें। बड़ा अजब अमल है, अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, और इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फायदा होगा। अजीब नक्श है, अजीब नक्श है। लक़द जाकुम का नक्श, उसका तरीका, उसका कागज, एक पूरा कागज छपा हुआ है। हमारे खिदमत वालों को पता होगा, वो आज निकाल के मुझे चेक करा देंगे। तो हमारे खिदमत वालों को इल्म है, 26 मुहर्रम का हम पूरा कागज देते हैं, तरीका कार हर चीज उसमें मौजूद है। अगर आप कहें तो फिर ये हो जाए, हैं जी? तो इंशाल्लाह फायदा बहुत होगा। अपना आखिरी अशरा है, याद रखिए, यह कीमती बनाना है। अगर इसमें थोड़ी सी कमी रह गई नुकसान हो जाएगा। क्यों? अब आप 2 अशरे यहां तस्बीखाने में गुजार के इंतहाई मालदार हो चुके हैं, और चोर वहीं आता है जहां माल दौलत होती है। ख्याल कीजिए, कोई कमी ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए, अमल में हम ठंडे ना पड़ जाएं, हमारी तबीयतों में सुस्ती और नींद ना गालिब हो जाए। आखिरी अशरे में अपने आप को सेहतमंद करें, ताकतवर करें, चुस्त करें, और हिम्मतें बढ़ाएं, अपनी तवज्जो बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? हिम्मतें बढ़ाएं, कहें, और तवज्जो बढ़ाएं। हाँ, अपनी नींद को कम करें, आखिरी अशरे पे मेहनत करें, आखिरी अशरे पे तवज्जो करें। और जो आज तशरीफ लाए हैं वो खुशकिस्मत इंसान हैं, वो अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, कुरान पाक की तिलावत, उन्हें बताएं कि या तवाब या करीम का अमल क्या है। जो आज आए हैं उसके कमालात क्या हैं। जो आज आए हैं वो सलात कुन फयाकुन का कागज जो है, तरीका इस्तकबालिया से ले लें, वो 100 नफल पूरी करने की मन्नत मान लें, वरना जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाएं, वो जितने भी रूहानी पैकेज हैं वो एक एक रूहानी पैकेज में खो जाएं। जो अभी एतकाफ में आए हैं, झोलियां भर के जाओ, मुरादें पा के जाओ, नसीब मुकद्दर को अल्लाह के खजानों से मनवा के जाओ, और जुड़ के रहें, मोहब्बत से रहें। अपने आप के कंधे जरा आखिरी अशरे में सुकेड़ लें, नमाज में भी, इफ्तार में भी, सोने में भी अपने आप को सुकेड़ लें, जगह थोड़ी कर लें। इतने ही में इंशाअल्लाह किफायत अल्लाह कर देगा। जो मुसलमानों के लिए फरमाया कंधे सुकेड़ता है, लफ्ज कंधे हैं, अल-मुअत्तिऊन अकनाफन, कंधे सुकेड़ता है जो मुसलमानों के लिए फरमाया अल्लाह जल्ल शान हो, उसके लिए राहें वसी कर देता है। जो ये कहते हैं ना कि हमारी हर जगह रास्ते बंद हैं, हमारी मंजिलें बंद हैं, हमारे रास्ते, हमारी गलियां बंद हैं, गलियां बंद हैं, तो वो जो हैं कंधे सुकेड़ लें। क्या सुन लें?
कंधे सुकेड़ लें। कल इंशाअल्लाह ताला 23वीं शब है, 22वीं शब नक्श यारो गारो मजार आज शाम को लिखना है। आज हाँ, शाम को 22 हो जाएगी। बहुत ताकतवर नक्श है और हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए मजीद सहूलत हो, आप लिखें। और इंशाअल्लाह कल जो है 23वीं को गुड़ का अमल होगा, बाल और नाखून का अमल होगा, और 25वीं को दम तेल पानी दिया जाएगा और झाड़ू का अमल होगा। और अपने आप को कोशिश करें कि अमाल तस्बीहात में और यहाँ के अदब का ख्याल रखें, कहीं बेअदबी ना हो जाए, अदब का ख्याल रखें, चौल में भी अदब, उठने बैठने भी अदब। इंशाअल्लाह अदब होगा तो सादत मिलेगी। और सादत पाने के लिए फार्म ले लें, जो नए हजरात आए हैं और जिन्होंने पुरानों ने नहीं लिखा। आप किसी सरकारी गैर सरकारी किसी शोबे से आपका ताल्लुक है, अपना पूरा पेशा वजाहत से लिखें और अपने नंबर वजाहत से लिखें। वो फार्म लाजिम पुर करें। जो हजरात नए आए हैं, जो पुराने हैं, वो लाजिम पुर करें। और दूसरी चीज ये है कि आपको फार्म दिए थे ए और बी, वो आपने लिखकर उम्मीद है इस्तकबालिया पर जमा कराए होंगे, और जिन्होंने नहीं कराए वो जरूर कराएं। और अब दो रास्ते हैं, या तो मैं फिर जुदा कर लूं या यहीं बैठे बैठे, जैसे आप कहें, बैठे बैठे। अब आपको पता चला कि अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलाल का है क्या। तो लिहाजा इसको इस दर्द के साथ, इस कैफियत के साथ और इस पूरे जज्बे के साथ आपने पढ़ना है, और पूरी कैफियत के साथ डूब के, सर झुका के। और जिनको याद नहीं वो भी साथ पढ़ें, और याद करने की निस्बत याद कैफियत के साथ पढ़ेंगे। और सांस रोक के पढ़ेंगे, सांस टूट जाए फिर सांस ले ले, फिर सांस टूट जाए फिर सांस ले ले। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बेहलालिका अन हरामिक वागननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। बैठ के अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से करेंगे, पूरी तवज्जो से। इससे पहले बंदिश तोड़ लाहौती अमल है, रोज करते हैं। और देखें, ये मेरी तरफ देखें, ऐसे मुट्ठियां उंगलियां डाल के मुट्ठी बंद करके, असल कैफियत यह है कि या अल्लाह जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है, वो रिस्क की है, वो सेहत की है, वो जिंदगी कोई है। या अल्लाह ऐसी जिंदगी बंदिशों में जकड़ी हुई है, तेरा अमर होगा, तेरा हुक्म होगा, तेरी शफकत होगी, तो या अल्लाह ये जिंदगी बंदिशों से निकलेगी। मैंने अपनी बड़ी कोशिश करके देख ली है, अब तेरे नाम का सहारा लेता हूँ। और आज तक तेरे नाम का सहारा जिसने भी लिया कभी नाकाम नहीं हुआ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ।
पूरे बदन पे, इस फूंक को सर पे, पूरे बदन पे, जहां तक हाथ पहुंचता है पूरी तवज्जो से मला करें। ये अमल सुन्नत अमल है। हाथों पे फूंक मार के पूरे बदन पे मलना सुन्नत अमल है। ये मेरा नहीं, सुन्नत अमल है और बहुत ताकतवर अमल है, बहुत कमाल। अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से तवज्जो से करेंगे। उसके बाद मुराकबा करेंगे और मुराकबे में तसव्वुर ये होगा कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। फिर तन्हाइयों में इस मुराकबे पे मेहनत करेंगे। पहले इस मुराकबे की आदत बनाएंगे, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह आदत इबादत बन जाएगी, आदत इबादत बन जाएगी। एक वक्त आएगा कि आदत इबादत बन जाएगी। तो मुराकबे में भी तवज्जो, दुआ में भी तवज्जो। तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से और पूरे जज्बे से बावाज़ बुलंद करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह। आमीन। नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन 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 बिरहमतिक।